Students, in this video I am going to start chapter 5 fraction. It is your in first term syllabus. So first we discuss about the fraction. What is fraction? A fraction indicate equal part of whole. Suppose we have any number which divide into three equal part. 1/3 means that one whole thing is divided into three equal part and one part out of these three part is taken. Okay, for example, let us examine what ideas as a fraction of 3/4 may represent. In this figure, whole circle divided into four sections, 1 2 3 4. Three section are shaded, one section are remaining. So shaded portion is 3/4 of whole. मीन्स कितने पोर्शन शेडेड है इसके? 3 पोर्शन शेडेड है. सो इट इज नोन एज 3/4 ऑफ होल. इन दिस फिगर 1 2 3 4 मीन्स टोटल रेक्टेंगुलर शेप डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट एंड 3 पार्ट आर शेडेड. सो इट इज नोन एज 3/4 ऑफ complete. 1 2 3 4. This figure also divided into 4 section and 3 section equally section are shaded. So this is called your 3/4 of the figure. Okay, it may represent 3 out of 4 members in a group. 3 out of 4 fruits are mangoes. Suppose here it is 4 figure. In figure 3 are mangoes and in total 4 fruits, no? 1 2 3 4 fruits and 3 are mangoes. So 3/4 of this fruit are mango. What is equivalent fraction? Equivalent fraction का मतलब हो गया two or more fraction having the same value or representing the same part of whole are called equivalent fraction. Means किसी भी नंबर को या किसी भी थिंग को इक्वली डिवाइड कर लिया जाए और उसके पार्ट इक्वली डिवाइड हो जाए तो वो क्या कहलाएगा? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहलाएगा. जैसे हियर फिगर इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, 1 पार्ट शेडेड, 1 पार्ट remaining as. So it is known as 1/2. Second figure, total 4 part are there, 2 part are shaded, 2 part are remaining. So it is known as 2/4. It is also equal to the 1/4. In next figure, total 6 part and 3 parts are shaded, 3 parts are remaining. So 3/6. In next figure, total 8 portion are given and 4 section are shaded, 4 are remaining. So it is known as 4/8. So 1/2 means half of the figure, 2/4 means half of the figure, 3/6 means half of the figure and 4/8 means half of the figure. All are equal but it is represented by the different fraction. Means 1/2 is equal to 2/4 is equal to 3/4 and 4/8. All are same. Now open your page number 83. Example 2/3. Okay. If we want to change 2/3 into equivalent fraction, so we multiply both numerator and denominator by a same number. 2/3, when we multiply 2/3 by 2, we get 4/6 which is equal to 2/3 here. If we multiply both number by 3, we get 6/9 which is also equal to 2/3. Again, if we multiply both the digit by 4, we get 8/12. It is also equal to 2/3. Means 2/3 is equal to 4/6, 6/9 and 8/12. All are equal. अच्छा, इसमें करना क्या है कि आप न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए. जैसे हमने ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई किया, नीचे भी 2 से कर दिया, या ऊपर 5 से करते हैं नीचे 5 से कर देते. इसमें जैसे 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई हुआ या इसमें 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई हुआ, ऐसे ही किसी भी नंबर से ऊपर और नीचे अगर मल्टीप्लाई करें सेम नंबर होना चाहिए तो जो फ्रैक्शन मिलेगी वो आपको सेम मिलेगी. सो दीज आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. सिमिलरली 18/24 जैसे हमने मल्टीप्लाई किया वैसे हम डिवाइड अगर कर दें बट सेम नंबर से, 18 divided by 2 and 24 divided by 2, we get 9/12 which is equal to 18/24. If we divide both numerator and denominator by 3, we get 6/8. It is also equal to 18/24. Otherwise, if we divide both the number by 6, we get 3/4 and so on. Means जैसे ऊपर के क्वेश्चन एग्जाम्पल में था कि हमने सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया था, वैसे अगर सेम नंबर से डिवाइड कर दिया जाए तो रिजल्ट जो मिलेगा वो भी फ्रैक्शन आपकी सेम होगी. दीज आर नोन एज इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. नाउ एग्जाम्पल नंबर 1, पेज नंबर 83. राइट 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ दिस 3/7. इसके 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखना है.
तो अभी आपसे बोला कि किसी भी नंबर से बस नंबर सेम होना चाहिए, हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दें. हियर 3/7 आर गिवन. इफ यू मल्टीप्लाई बोथ द नंबर बाई 2 or multiplied by 3 or we multiplied by 4, in all three cases we get same result, means 6/14, 9/21 and 12/28. 6/14, 9/21 and 12/28. all these fraction are equivalent to 3/4. मीन्स किसी भी नंबर से अगर ऊपर नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो जो रिजल्ट मिलेगा वो आपको सेम मिलेगा. ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने का मेथड है. ये आपकी एक्सरसाइज में इस तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे. सेम एज हियर 8/13, बोथ नंबर मल्टीप्लाइड बाई 2 और बोथ नंबर मल्टीप्लाइड बाई 3. अदरवाइज इफ यू मल्टीप्लाई 5, आप कोई भी नंबर ले सकते हैं. आप यहाँ पे 5 ले सकते हैं, 6 ले सकते हैं, निगेटिव नंबर दोनों ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे. तो अगर ये मल्टीप्लाई कर दिया जाए जो फ्रैक्शन आपको मिलेगी वो भी सेम होगी. ओके, चेक वेदर द फॉलोइंग आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन और नॉट. अब इसको चेक करना है कि ये फ्रैक्शन आपकी इक्विवेलेंट है या नहीं है. इसके लिए क्या करना है, एक तरीका तो ये था कि दोनों के एलसीएम निकालते, उसके बाद हम कंपेयर कर लेते कि दोनों वैल्यू सेम आ रही है कि नहीं, जबकि डिनोमिनेटर सेम हो जाए. एक मेथड ये कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें. व्हेन वी मल्टीप्लाई 4/40 एंड 10/16, 4 मल्टीप्लाइड बाई 40 एंड 10 मल्टीप्लाइड बाई 16, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 160. एंड 4 एंड 16 को मल्टीप्लाई करने पे क्या मिल रहा है 160. दोनों रिजल्ट सेम मिल रहा है ना. तो अगर से दोनों का प्रोडक्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर जो रिजल्ट मिल रहा है वो सेम है तो ये कहा जाएगा कि फ्रैक्शन आर इक्वल. नाउ ओपन पेज नंबर 84, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन. अब कितने तरीके के फ्रैक्शन होते हैं. फर्स्ट, लाइक फ्रैक्शन. लाइक फ्रैक्शन मीन्स फ्रैक्शन लाइक 5/8, 4/8, 7/8, 1/8, all having the same denominator are called like fraction. अब इस सब में देखिएगा कॉमन क्या है, 5/8, 4/8, 7/8, 1/8 means denominator are equal ना. If the fraction have same denominator then such type of fraction is known as the like fraction. अगर एक ही तरीके के डिनोमिनेटर है, सबके डिनोमिनेटर सेम है तो ये वो फ्रैक्शन आपकी क्या कहलाएगी, लाइक फ्रैक्शन कहलाएगी. ये वर्ड कई जगह यूज होगा लाइक फ्रैक्शन. इसमें करना क्या होगा कि सारे डिनोमिनेटर को सेम कर लेंगे, उसके बाद कंपेयर कर लेंगे, जो भी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट होगी वो देखा जाएगा. अनलाइक फ्रैक्शन, फ्रैक्शन लाइक 1/5, 4/5, 7/8, 8/9, ऑल हैविंग द डिफरेंट डिनोमिनेटर्स आर अनलाइक फ्रैक्शन. लाइक फ्रैक्शन में क्या था, डिनोमिनेटर सेम थे. अनलाइक फ्रैक्शन में क्या होगा, डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट. प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन लाइक 1/4, 5/6, 8/9, 9/13 इन विच न्यूमरेटर इज लेस देन, न्यूमरेटर इज लेस देन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा, लेस देन डिनोमिनेटर और कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन. क्या होना चाहिए, न्यूमरेटर की वैल्यू कम होनी चाहिए. सब में देखिए न्यूमरेटर 1, ये 4, तो 1 इज लेस देन 4. न्यूमरेटर 5, डिनोमिनेटर 6, 5 इज लेस देन 6, 8 इज लेस देन 9, 9 इज लेस देन 13. मीन्स डिनोमिनेटर ज़्यादा हो, न्यूमरेटर कम हो. इफ न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर देन सच टाइप ऑफ फ्रैक्शन इज नोन एज द प्रॉपर फ्रैक्शन. Improper fraction, fraction like 3/3, 7/5, 15/15, 25/19 in which the numerator is either equal or greater than denominator are called improper fraction. Proper fraction में क्या था, डिनोमिनेटर बड़ा होना चाहिए था, न्यूमरेटर छोटा होना चाहिए था. improper fraction में क्या है कि न्यूमरेटर बराबर हो, इक्वल और ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर के इक्वल हो या डिनोमिनेटर से ज़्यादा हो. देखिए 3 इक्वल है, ये हो गया, 15 इक्वल है, ये हो गया. तो या तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर सेम हो, अदरवाइज न्यूमरेटर इज ग्रेटर, न्यूमरेटर मीन्स ये ऊपर जो है, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, देन सच टाइप ऑफ फ्रैक्शन इज कॉल्ड improper fraction. Mixed fraction, fraction like 4 whole 5/7 consisting of a natural number and a proper fraction written together with the understanding that they are to be added to each other. 4/5/7 इज इक्वल टू 4 + 5/7. ये कहीं यूज होगा कई जगह पे. 4 whole 5/7 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4 + 5/7, और इसको सिंप्लीफाई करना होगा तो 7 4 28 एंड +5, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसमें और उसके बाद ये ऐड कर दिया जाएगा, /7 टोटल हो जाएगा. आर कॉल्ड मिक्स फ्रैक्शन. इस तरीके की फ्रैक्शन क्या होगी आपकी, मिक्स फ्रैक्शन कहलाएगी. ओके, नाउ स्टार्ट एक्सरसाइज 5A, page number 86. Write a fraction that represent the shaded part of the figure below.
इसमें जो फिगर दिए गए हैं इसमें शेडेड पोर्शन इस पूरे फिगर का कितना पार्ट है इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में आपको लिखना है। अब यहाँ पे देखिए क्या है, टोटल फिगर डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शन, 1 पार्ट आर कलर्ड एंड शेडेड एंड 1 पार्ट आर remaining. So such this figure represented as 1/2. We write here 1/2. In this figure how many parts are there? 3 parts. So we write denominator 3. And how many shaded portion? 2 portion are shaded. So we write here 2/3. Clear? Now in this next figure 1 2 3 4 5 6 7 8 means all figure divided by into the 8 part. Okay, how many portion are color shaded? 1 2 3. So we write here 3/8. Okay, in last part total figure divided into 1 2 3 4 5 6 7 8 8 portion. And how 8 portion and how many figures are shaded? 1 2 3 4 5 6 6/8. अब 6/8 को हम 3/4 भी कर सकते हैं, वो कोई हरीश नहीं है। ओके, राइट द फ्रैक्शन विच रिप्रेजेंट अनशेडेड पोर्शन इन ईच ऑफ द फिगर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। अब इन्होंने अभी तक क्या था, इसमें हमको शेडेड पोर्शन को रिप्रेजेंट करना था। अब इन्होंने बोला इन सब का अनशेडेड पोर्शन लिखिए, तो इसका अनशेडेड पोर्शन 1/2, इसमें अनशेडेड पोर्शन 1/3, इसमें अनशेडेड पोर्शन 1 2 3 4 5 5/8 एंड 2/8। Clear? You can write. Now question number 3. Write the equivalent fraction represented by each picture. इस फिगर का equivalent fraction लिखना है। How many this figure divided into how many parts? 1 2 3 4 5 6 total part 6 and the colored portion is shaded portion is 3. So we write here 3/6. In this figure only 2 part and 1 part are shaded, so we write 1/2. Both are equal. Okay, here 1 2 3 4 total part 4 and 1 part are shaded. In this figure 1 2 3 4 5 6 7 8 and shaded figure 2, so we write here 2/8. Clear? Now start question number 4. फाइंड 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फॉर ईच फ्रैक्शन। अब इन सब के हमको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखना है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में लिए क्या था, अभी एक एग्जांपल नंबर 1 देखा है पेज नंबर 84 पे। इट इज योर क्वेश्चन नंबर 4। 12/15 इज गिवन। ओके, इफ यू वांट टू राइट 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ दिस, so we multiply both numerator and denominator with a common number. Suppose when we multiply both number by 2 or by 3 or multiplied by 4, we get result 12/30, 36/45 and 48/60। मीन्स किसी भी नंबर से आप यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई कर सकते थे ऊपर नीचे, 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते थे, 7 से मल्टीप्लाई कर सकते थे। आप चाहते तो माइनस से भी मल्टीप्लाई कर देते ऊपर नीचे, माइनस नेगेटिव नंबर लेके, तो भी आपको रिजल्ट सेम मिल जाता। तो इसी तरीके से आप सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ पार्ट को सॉल्व करिए। देखिए कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। Find the missing number that make the fraction equivalent 5/35 and 1। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है क्या होगा। अब इस 5 में कितने से डिवाइड किया गया होगा कि 1 आया। अब क्वेश्चन नंबर 5 के फर्स्ट में देखिएगा, इन्होंने न्यूमरेटर को 1 किया है, तो हमको कितने से डिवाइड करना होगा। डिवाइड बोथ द टर्म बाई 5 विद न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। 5 1 ज़ 5 अपॉन 5 7 ज़ 35. So we fill denominator portion as a 7. In second part 3/8 is equal to 36 upon वो ब्लॉक है, फिर उसमें फिल करना है। तो अब 36 कब आएगा, इस 3 में कितने से मल्टीप्लाई करने की 36 मिल जाएगा 12 से, तभी यहाँ पे 36 आपको मिलना है। तो जब ऊपर 12 से मल्टीप्लाई किया है तो नीचे भी 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा 96। ठीक है, ओके। इन थर्ड पार्ट 24/32 इज इक्वल टू, उन्होंने लिखा हुआ है यहाँ पे कुछ गैप है, इसमें कुछ रिजल्ट आएगा, अपॉन में 4 है, ये 4 है। तो अब हम कितने से मल्टीप्लाई कर दें इसमें कि डिनोमिनेटर 4 है, तो जाहिर सी बात कितने से डिवाइड हुआ होगा विद 8। 24 ऑल्सो डिवाइडेड बाई 8, 8 3 ज़
24 and 8 4s are 32. So we fill in this block 3 as a number. In fourth question, 51 divided by 17, so we get 3. In numerator we divide 34 by 17, we get as a 2 result. Complete in your copy. Now question number 6. Write an equivalent fraction of 3 by 4 with numerator of as 36. मीन्स 3 by 4 को हमको ऐसे फ्रैक्शन में लिखना है जिसका न्यूमरेटर 36 हो. वो कैसे लिखेंगे? अब जैसे देखिए न्यूमरेटर अगर 36 तो डिनोमिनेटर में हमको कुछ फिल करना होगा ना यहाँ पे. तो 3 में कितने से मल्टीप्लाई करेंगे कि 36 आ जाएगा? 12 से. सो वी मल्टीप्लाई बोथ द नंबर बाई 12. 3 12s are 36 and 4 12s are 48. So we write here 48. आइए देखते हैं कैसे सॉल्व होगा. Okay, 3 multiplied by 12 and 4 multiplied by 12. We get 36. It is already given in your book, and 12 4s are 48. It is your answer. In second part, 6 upon 7 with denominator as 49. डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए आपको? 49 होना चाहिए. तो अभी 7 में कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 49 आ जाएगा? वी शुड मल्टीप्लाइड बाई 7. सो इन न्यूमरेटर वी ऑल्सो मल्टीप्लाइड बाई 7. 7 6 42 and 7 7 49. It is your answer. Now question number 7. Check which of the following pairs are equivalent. अब हमको ये चेक करना है कि कौन सा पेयर आपका इक्विवेलेंट है. इक्विवेलेंट के लिए क्या करना होगा? सबसे पहला काम 4 by 7 को वैसे लिख दिया 4 by 7. एंड नेक्स्ट नंबर है 32 upon 56. तो इस दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है? 8 से दोनों डिवाइड हो जाएंगे ना. सो वी डिवाइड बोथ द टर्म बाई 8. 32 डिवाइडेड बाई 8 एंड 56 डिवाइडेड बाई 8. वी गेट 4 by 7. 4 by 7 4 by 7 means 4 upon 7 and 32 upon 56 are equal. So we write 4 upon 7 and 32 upon 56 are equivalent fraction. Same as up क्वेश्चन नंबर 7 सेकेंड एंड थर्ड पार्ट को सॉल्व कर सकते हैं. उसको पहले कॉमन फैक्टर बना लीजिए, उसके बाद देखिए कि कितने से मल्टीप्लाई करने पर वो इक्वल हो रहे हैं या डिवाइड करने पर इक्वल हो रहे हैं. अगर से इक्वल आ जाए तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, अदरवाइज नहीं. क्वेश्चन नंबर 8. क्लासीफाई एज प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. प्रॉपर फ्रैक्शन क्या था? अभी पढ़ा था कि प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है? न्यूमरेटर इज लेस देन इट्स डिनोमिनेटर. मीन्स न्यूमरेटर लेस होना चाहिए. तो ये आपका क्या हो जाएगा? 3 by 7. न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, सो इट इज नोन एज प्रॉपर फ्रैक्शन. ओके, फर्स्ट प्रॉपर फ्रैक्शन. एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या था? जिसमें डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर इक्वल हो, अदरवाइज डिनोमिनेटर ज़्यादा हो, सॉरी न्यूमरेटर ज़्यादा हो. इसमें न्यूमरेटर कम, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर ज़्यादा होना चाहिए, मोर देन denominator. It is known as improper fraction. Improper fraction. Okay, it is also improper. 2 by 3 means proper fraction. 8 by 8 improper fraction. 8 by 8 means numerator and denominators are equal, so it is improper fraction. And 14 upon 21 it is proper fraction because denominator is greater than numerator. Question number 9. कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब ये हो गया कि ऐसा फ्रैक्शन बनाना है जिसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर या तो इक्वल है, अदरवाइज न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर. इट इज योर फर्स्ट पार्ट 1 whole 3 by 7. सो 7 multiplied by 1, 7 1s are 7 and plus 3 10. 7 1s are 7 and plus 3 1. 10 upon 7. 10 upon 7. Why it is improper fraction? Because its numerator is greater than denominator. In fourth part, 8 whole 11 upon 16. So 8 multiplied by 16 plus 11. 8 multiplied by 16 plus 11 is equal to 176 plus 11 upon, sorry यहाँ कुछ mistake. 16 into 8 128 plus 11 is equal to 139 upon 16. It is 139 upon 16. 10th question. कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू अ मिक्स्ड नंबर. इसको मिक्स्ड नंबर में चेंज करना होगा. मीन्स फर्स्ट क्वेश्चन 7 upon 5.
Simply divide 7 by 5. 5 ones are 5. 2 as a remainder. So we write here quotient remainder upon 5. 1 whole 2 by 5. Quotient whole 1 whole and remainder upon divisor 2 upon 5. Fourth part of this question. 105 divided by 8. Divide 105 by 8. We get 13 as a quotient and 1 as a remainder. So we write here 13 whole 1 upon 8. कोशिश करिएगा इसके और क्वेश्चन आपसे लग गए. नाउ स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 11th. कन्वर्ट द फॉलोइंग सेट ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन इनटू लाइक फ्रैक्शन. इन फ्रैक्शन को अनलाइक फ्रैक्शन है, इनको लाइक फ्रैक्शन में चेंज करना है. लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शन क्या होता है? अनलाइक फ्रैक्शन मीन्स जिनके डिनोमिनेटर डिफरेंट हो एंड लाइक फ्रैक्शन मीन्स हुज डिनोमिनेटर्स आर इक्वल. मीन्स इनके डिनोमिनेटर को हमको सेम करना होगा. डिनोमिनेटर सेम कब होगा? जब कि हम इनका एलसीएम निकाल के सबको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे, लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे. So it is your question 1 by 4, 1 by 6, 7 by 9, 5 by 12, 11 upon 18. So take LCM of 4, 6, 9, 12 and 18. अब LCM कैसे लेंगे? पहले 4, 6, 9, 12 and 18 को प्राइम फैक्टराइज करेंगे. डिवाइड ऑल नंबर विद 2. 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 ये तो डिवाइड होना नहीं है. 2 6s are 12, 2 9s are 18. अगेन 2 1s are 2 सेम एज 2 3s are 6. कोई डिवाइड नहीं होना है 2 से, बच्चा छोड़ दिया. अब नाउ ऑल नंबर डिवाइडेड बाई 3. सो डिवाइड ऑल द नंबर बाई 3. 3 1s are 3, 3 3s are 9, 3 1s are 3, 3 3s are 9. अगेन डिवाइडेड बाई 3. नाउ एलसीएम 2 multiplied by 2 multiplied by 3 multiplied by 3 मीन्स एलसीएम इज 36. अब हमको फ्रैक्शन में क्या करना है? हर फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है वो 36 बनाना है. जैसे 1 by 4 है तो 1 by 4 को 36 कब बनाएंगे? इसमें कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 36 हो जाएगा 9 से ना. सो 1 by 4 मल्टीप्लाइड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई 9. फॉर 1 by 6 बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर मल्टीप्लाइड बाई 6. फॉर 7 upon 9 मल्टीप्लाइड बाई 4. फॉर 5 by 12 बोथ नंबर मल्टीप्लाइड बाई 3 एंड 11 upon 18 मल्टीप्लाइड बाई 2. ध्यान दीजिएगा डिनोमिनेटर को देखा जा रहा है, इसको 36 बनाना है. तो इसको 36 बनाने के लिए 9 की रिक्वायरमेंट है. इसको 36 बनाने के लिए 6 6 36. सो 6 से मल्टीप्लाई कर लिया. 9 को 36 बनाने के लिए 9 4 36. सो वी मल्टीप्लाई 4. एंड 12 को 36 बनाने के लिए मल्टीप्लाइड बाई 3. 18 को 36 बनाने के लिए मल्टीप्लाइड बाई 2. ओके. सो फर्स्ट 9 upon 36, 6 upon 36, 28 upon 36, 15 upon 36 and 22 upon 36. It is your in the form of like fraction. Why like fraction? Because all denominators are same which are equal to 36. Okay. ये मैंने इसी क्वेश्चन के सेकंड एंड थर्ड पार्ट के एलसीएम निकाल दिया है. फर्स्ट का एलसीएम 42 आ गया, सेकंड का एलसीएम 42 एंड थर्ड का एलसीएम 300. आपको क्या करना है कि सारे फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को 48 बनाना है सेकंड पार्ट में एंड थर्ड पार्ट में सबके डिनोमिनेटर को 300 बनाना है. ट्राई करिएगा, सॉल्व करिएगा. इफ़ यू हैव एनी डाउट यू मे कॉन्टैक्ट मी ऑन माई व्हाट्सएप नंबर. नाउ क्वेश्चन नंबर 12. विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन आर इन सिंपलेस्ट फॉर्म. सिंपलेस्ट फॉर्म मीन्स इसमें से कौन से नंबर ऐसे हैं जो अब कुछ कॉमन फैक्टर जिनके बीच में नहीं है. ओनली देयर इज ओनली वन कॉमन फैक्टर. सो 64 upon 73 इसमें से कुछ कॉमन फैक्टर है? नहीं है. कोई ऐसा नंबर नहीं है ना जो दोनों को डिवाइड कर दे. सो इट इज इन द फॉर्म ऑफ सिंपलेस्ट फॉर्म. 17 upon 84 देयर इज नो कॉमन फैक्टर बिटवीन दिस टू नंबर. सो इट इज इन द फॉर्म ऑफ सिंपलेस्ट फॉर्म. अगर से कोई कॉमन फैक्टर होगा तो वो सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं कहलाएगा. हियर आई थिंक 7 एज अ कॉमन फैक्टर. बोथ नंबर डिवाइडेड बाई 7. 7 8s are 56, 7 9s are 63. सो इट इज़ नॉट इन द फॉर्म ऑफ सिंपलेस्ट फॉर्म. यहाँ पे भी 27 and 64 देयर इज नो कॉमन फैक्टर. सो इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ कॉमन फैक्टर, वो सॉरी सिंपलेस्ट फॉर्म. ऐसे ही कर लीजिएगा. क्वेश्चन नंबर 13. रिड्यूस द फॉलोइंग फ्रैक्शन टू द सिंपलेस्ट फॉर्म. अब इनको क्या करना है? हमको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना है. सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कैसे होगा? कोई भी कॉमन फ्रैक्शन होगा तो कॉमन नंबर होगा तो दोनों को उससे डिवाइड कर देंगे. जैसे 18 and 24 दोनों 2 से डिवाइड होते हैं ना, दोनों 3 से भी डिवाइड हो रहे हैं, 8 से भी डिवाइड हो रहे हैं. सो डिवाइड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विद अ कॉमन फैक्टर एंड वी गेट अ सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द फ्रैक्शन. आइए देखते हैं कैसे सॉल्व होगा. 18 upon 24 डिवाइड बोथ द नंबर बाई 2. 2 9s are 18 and 2 12s are 24. We write here 9 by 12. Again 3 as a common factor, so divide both the term by 3. 3 3s are 9, 3 4s are 12. We write here 3 by 4. In second part 35 upon 135.
So divide both the term by 5 because 5 as a common factor. So 35 divided by 5 we get 7 as a numerator, and when we divide 135 by 5 we get 27 as a denominator. Now there is no common factor, so 7 upon 27 in the form of simplest form. Next, 48 upon 72. We know that both number divided by 2, both number divided by 4, 6 and so on. So we divide here both number by 12. 12 4s are 48, 12 6 are 72. If you want, you can divide both the number by 2, again 2 or 3. Okay, you get same result, no problem. Fourth part, 124 upon 156. We divide both the number by 2. 2 6 are 12, 2 2s are 4, and 2 7s are 14, 2 8s are 16. 62 upon 78. Again divide both the number by 2. 2 3s are 6, 2 1s are 2. Here 2 3s are 6, 2 9s are 18. So 31 upon 36, it is your simplest form of the fraction. Okay, I think this 5 exercise is completed. Try to simplify all the question of this exercise. If you have any doubt, you may contact me on my WhatsApp number. और इस वीडियो को आप 1-2 बार ज़रूर देखिए. जहाँ पे प्रॉब्लम होती है पॉज करिए, टॉपिक को समझने की कोशिश करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. जो भी आपको न्यू वीडियो अपलोड होगा वो मालूम हो जाएगा. लेकिन इस वीडियो को बार बार कई बार देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे सॉल्व करते हैं. जहाँ पर भी जिस क्वेश्चन का सोल्यूशन प्रॉब्लम हो रही समझने को, वहाँ पे वीडियो को पॉज कर दीजिए. पॉज करके देखिएगा तो आपको समझने में ईजी होगा. स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पॉज कर लीजिए और कॉपी कंप्लीट करते जाइए. किसी एक दिन आपकी कॉपी चेक की जाएगी. थैंक यू, ऑल द बेस्ट.